Jain students, welcome to the online class of science. This is the time of online classes. So we discuss about the chapter first of science, that is chemical reaction and equation. In this chapter, we discuss about what is chemical reaction, what are the types of chemical reactions, and what are its characteristics. In this chapter, we also discuss about the balancing related equations, how we balance the equation. Okay, we discuss our first topic of chemical reaction. Here we see that a chemical reaction is a chain in which one or more substance or reactant react to form a new substance with entirely different property. It means that केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज होता है जिसमें वन या उससे ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स. लेट्स वी सी द एग्जांपल ऑफ दिस. फॉर एग्जांपल, अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स carbon dioxide. Here the left side of the reaction, that is known as reactants. ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हो उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. अब इन दोनों की जो मिक्स, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के जो मिक्स होने से एक फाइनली न्यू सब्सटेंस, जो कि इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे प्रोडक्ट. लेट्स वी डिस्कस अबाउट द reactant and product definition. Here we discuss about the definition of reactants and product. Here the reactants are the substance which takes part in a chemical reaction are called reactants. Reactants means ऐसे substance जो chemical reaction में participate करते हो, मतलब कि जिनके बीच में chemical reaction हो, ऐसे substance इनको हम बोलते हैं reactants. And after when the reactants are mixed, new substance are produced. New substance are produced. जब रिएक्शन होने के बाद न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, सोडियम प्लस वाटर को हम जब मिक्स करते हैं, उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. तो यहाँ पर जो सोडियम और वाटर का जो रिएक्शन हो रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज रिएक्टेंट. इट मींस लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ द आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. इट इज नोन एज. लेट्स वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है किसी दो सब्सटेंस के बीच में? तो इसके लिए हमें सबसे पहले characteristic of chemical reaction जानना पड़ेगा. So the characteristic of the chemical reaction first is evolution of the gas. It means releasing of the gas. जब भी chemical reaction होगी उसमें कोई भी release होगी गैस. Second, formation of the precipitate. Precipitate means insoluble part of the solution. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसमें कलर चेंज होगा मोस्टली केसेस में सॉल्यूशन का. फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर. इट मींस दैट हो सकता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो तो समटाइम्स द टेम्परेचर विल बिकम्स हॉट एंड समटाइम्स द टेम्परेचर विल बिकम कोल्ड. एंड लास्ट, फिजिकल स्टेट. ऐसा भी होता है कई बार केमिकल रिएक्शन में कि जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और लिक्विड हो सकता है कि गैस में, या गैस से लिक्विड या सॉलिड भी बन सकता है. So we discussed the characteristic of chemical reaction in detail. So our first characteristic is evolution of the gas. It means that when some of the chemical reaction occurs with the evolution of the gas or mixture of the gases, it means that releasing of the gas is evolution of the gas. It means that the कुछ जो chemical reactions होती हैं उसमें या तो हो सकता है मिक्सचर ऑफ गैसेस का एवोल्यूशन है गैसेस का, और एवोल्यूशन का मतलब ही होता है रिलीजिंग ऑफ द गैस. फॉर एग्जांपल,
when the chemical reaction takes place between the zinc granules and dilute sulfuric acid, the evolution of the hydrogen gas will take place. Right? We see with the help of diagram here. We will take a conical flask. In this, here it is a cork, glass tube. If we mix the zinc granules with the dilute sulfuric acid, which is showing here, in this zinc sulfate is formed after the reaction of dilute sulfuric acid and zinc, and hydrogen gas is leaching out from the solution. Now we explain the second characteristic of chemical reaction, that is formation of precipitate. Formation of precipitate means precipitate एक ऐसा insoluble पार्ट होता है सॉल्यूशन के अंदर जो कि सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होता है. When two solutions are mixed together, a solid gets separated out from the solution is known as precipitate. जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं हम, तो उसमें जो insoluble पार्ट रह जाता है, उस पार्ट सॉल्यूशन के पार्ट को हम बोलते हैं insoluble पार्ट को precipitate. Let me see the example of this. When sodium sulfate is mixed with the solution of barium chloride, जब सोडियम सल्फेट that is Na2SO4 इसको हम बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ जब मिक्स कर रहे हैं, तो व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड. उससे जब ये दोनों मिक्स हो रहे हैं तो बेरियम सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ये इनसॉल्युबल पार्ट सॉल्यूशन में से बच रहा है और NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है. Okay students, now we discuss the third characteristic of chemical reaction, that is the change in color. Due to the chemical reaction, the color of the compound changes. It means that जब भी कोई chemical reaction होती है, तो जो compounds होते हैं, जो भी formation होता है product का, उसका color change हो जाता है mostly times. For example, when chlorine water जो कि येलोइश कलर का होता है, इट मींस येलो कलर में प्रेजेंट होता है, उसको जब हम सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, मतलब कि क्लोरीन वाटर जो कि येलो कलर का, उसको हम मिक्स करते हैं पोटेशियम आयोडाइड जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, उसमें हम आपस में जब मिक्स कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं दोनों की, तो अ ब्राउन कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड ऑफ आयोडीन. एक ब्राउन कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है हमें जो कि आयोडीन के फॉर्म में होता है. लेट्स वी सी द रिएक्शन ऑफ दिस क्लोरीन, जो कि क्लोरीन हमने वाटर फॉर्म में लिया है, दैट इज इन सॉल्यूशन फॉर्म जो कि येलो कलर का था. इसको जब हम रिएक्शन कराते हैं, दैट इज नोन एज पोटेशियम आयोडाइड. व्हेन क्लोरीन मिक्स विद पोटेशियम आयोडाइड, सो क्लोरीन रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, potassium chloride is obtained and iodine is obtained, which is in brown color. So next characteristic is physical state. Okay. So in some chemical reaction, the state of the product becomes different that of the reactant. कई chemical reaction ऐसी होती हैं जिसमें जो product formation होता है, उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है, मतलब कि उसकी स्टेट वो चेंज हो जाती है कई समटाइम्स रिएक्टेंट्स से. जैसे सपोज इफ वी टेक द एग्जांपल कैंडल जो होता है, मतलब कि मोमबत्ती एक सॉलिड फॉर्म में होती है. जब उसको हम बर्न करते हैं, कैंडल को जब बर्न किया जाता है तो क्या हो जाती है, मेल्ट होना चालू होती है. जब मेल्ट होती है तो वैक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज लिक्विड. तो कैंडल जो थी वो सॉलिड फॉर्म में थी, वो बन के गई लिक्विड. अगर हम उसको अगेन बर्न करते हैं तो जो वैक्स होता है वो एयर में चला जाता है जो कि गैसियस फॉर्म में. दैट इज नोन एज द फिजिकल स्टेट चेंज. Okay friends, so the next characteristic, that is change in temperature. Change in temperature. While doing a chemical reaction, the temperature of the chemical reaction changes. It means that जब भी कोई chemical reaction होती है तो जो temperature होता है वो change होता है. Sometimes हो सकता है कि जो chemical reaction हो रही है
उसमें टेम्परेचर कम हो, जिसके कारण बीकर हॉट थोड़ा कोल्ड होता है। हो सकता है टेम्परेचर ज्यादा होगा केमिकल रिएक्शन में तो बीकर क्या हो जाएगा, हॉट होगा। और ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, chemical reaction are of two types, exothermic and endothermic. Here we discuss the first, that is known as exothermic. Exothermic reaction क्या होती है? The reaction in which heat is released along the formation of the product are called exothermic reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है जब फॉर्मेशन प्रोडक्ट का होता है, मतलब जब दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स होते हैं तो जो प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन होता है उसमें से हीट रिलीज होती है। इस वाली कंडीशन में जो बीकर और टेस्ट ट्यूब होते हैं वो हॉट हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेट मी सी द इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन बिटवीन, जैसे कि हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विकलाइन, आपने सुना होगा चूना, चूना को हम जब पानी में मिक्स करते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज नोन एज क्विकलाइन, उसको हम जब पानी में मिक्स करते हैं दैट इज H2O, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, आपने चूने का पानी बनता है तो आपने देखा होगा जब भी चूने का हम जो घोल बनाते हैं उसमें से हीट निकलती है बहुत सारी, तो हीट रिलीज होती है उसमें से, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो उससे जो बनता है वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसमें से हीट रिलीज होती है। So next is endothermic reaction. Endothermic reaction क्या होती है देखते हैं। When the heat is absorbed by the chemical reaction, it is known as endothermic reaction. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में जब कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो हीट जब रिलीज होगी, सॉरी हीट इज एब्सॉर्ब, हीट जब एब्सॉर्ब होगी किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। When the chemical reaction, when the heat is absorbed by the chemical reaction, it is known as endothermic reaction. मतलब कि heat का absorption होना किसी reaction के टाइम पर उसको हम बोलते हैं endothermic reaction। अच्छा, जब heat absorb करेगी कोई भी body तो उसमें क्या होगा, in this the beaker becomes cold। इस वाली कंडीशन में क्या होगा, beaker या test tube जिसमें भी आप chemicals को mix करते हो वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर क्या रहेगा, बिल्कुल लो रहेगा। यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे, व्हेन द अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज मिक्स्ड विद द बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम क्लोराइड इज फॉर्म।